यस हेलो फ्रेंड्स। यस आर्य प्रिशा, जरा देखें। टुडेज आवर पॉइंट इज यस न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन एटम। ऑर्गन मीन्स कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, या तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा है, ऐसे कंपाउंड्स। यस, ऑक्सीजन की बात करें, एज पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. As per electron configuration of oxygen, inner side orbit is K and outermost orbit is L. Yes, as per electron configuration of oxygen, oxygen possesses 4 orbitals in its outermost orbit. Among the 4 orbitals, 2 orbitals possess unpaired electron and 2 orbitals having paired electron. The electron which are unpaired, they are responsible for covalent bond formation. The paired electron, they are not responsible, they are not able to form bonds. That's why these electron pairs are known as a anti-bonding electron pair. They are also known as a lone pair of electron. They are also known as a non-bonding electron pair. ये दो bonding electron pair है. That means oxygen, as per electron configuration, oxygen can form only 2 bonds. Okay, sweetie. अच्छा, तो ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तभी उनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज पर लुइस, जो लुइस बोल गया है हमको कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हमें इंडिकेट करना है, या तो डॉट फॉर्म में करो या बॉन्ड के फॉर्म में करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड फॉर्म में इंडिकेट किए। तो ये 2 पेयर है, ये 2 डॉट्स की पेयर है। ये पेयर है 2s2 की, सेकंड वन इज 2px2 की। बोथ साइड x and y. When we replace x by r means alkyl group, and y by h, compound will become R single bond O having 2 lone pair of electron and H. In short, it is symbolized by ROH. These compounds are known as alcohol. When X is replaced by AR, aryl group, means phenyl group. बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, जो मिलेगा इट इज नोन एज ए फिनाइल ग्रुप। इसको एराइल ग्रुप भी बोला जाता है। O और H, इसको शॉर्ट में लिखो AROH. These compounds are known as a phenol. If both X and Y replaced by alkyl group, otherwise aryl group, ROR, these compounds are known as ether compounds. Now you see, organic compound having oxygen atom, there are 3 types of compound: alcohol, phenol and ether. You observe the which type of functional group is present in this one. In alcohol and phenol, OH group is present. OH group is hydroxy group, and this is ether group. That's why organic compound having oxygen atom can be classified in 2 types. First type of compound in which hydroxy group is present, and second one in which ether functional group is present. That's why hydroxy compound, and second one is ether compound. ऐसे बोला जाता है। अच्छा, हाइड्रोक्सी कंपाउंड 2 टाइप के, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल मीन्स ROH, when OH group is directly attached to with alkyl group, and these compounds are known as a alcohol. But when OH group is directly attached to the carbon atom of benzene, they are known as a phenol. Benzene के OH directly connected है, they are also symbolized by AROH. और in ether, both valency of oxygen is satisfied by 2 alkyl groups. In case of alcohol, what we should have to study in this unit?
First of all, we should have to see the classification and definitions of alcohol. कितने टाइप के अल्कोहल है, उनकी डेफिनेशन क्या है वो समझना है. इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर लेना है. इनके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ अल्कोहल कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड. देन प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाटर सॉल्युबिलिटी आएगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज इसमें आता है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज फिनॉल. फिनॉल के बारे में हमें क्या पढ़ना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन. फिनॉल का भी क्लासिफिकेशन आएगा, उसका डेफिनेशन. इसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर, कॉमन मेथड एंड आईयूपैक मेथड. देन हाउ फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड, methods of preparation, and then finally is property, physical property and chemical property. Chemical property means chemical reactions. And finally, in third point is ether compound of this unit. इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है. तो classification and definition. There are so many methods which are used to classify the ether compound. वो और हर एक टाइप के ईथर की डेफिनेशन लेनी है. इसके बाद ईथर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है. देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ईथर कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं. और देन यस प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी केमिकल रिएक्शंस, और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है वो प्रॉपर्टी है. वाटर सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है. यस, फिजिकल प्रॉपर्टी में से आपको रीजन पूछा जाता है. ओके, कभी एमसीक्यू में भी रीजन के बेस पे एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं, तो समझना जरूरी है. ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी, वेदर इट इज रिलेटेड विद अल्कोहल है या फिनॉल है या ईथर है, उसमें ये बहुत काम करेंगे. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले इसको बोल दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? द बॉन्ड एट ए वीक अट्रैक्शन फोर्स arise between lone pair of electron and positively charged hydrogen. It is the part of standard 11 chemical bonding में ऑलरेडी आ चुका है. उसका एप्लीकेशन हमें यहाँ करना है. तो ये मीन्स ये दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस यूनिट. यस, ये यूनिट में हमें पढ़ना है तीन ही कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर. हर एक कंपाउंड के बारे में उनका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन, उनका नोमेनक्लेचर सीखना है. इसके बाद उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेना है. इसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से रीजन समझाया जाएगा. और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा उसमें किस टाइप की रिएक्शन देते हैं. ये केमिकल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है. तो ये अपना हो गया. यस नैन्सी, यहाँ खत्म करे. ओके वृंदा, बाद में मिलेंगे. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द अल्कोहल देन फिनॉल. ये बहुत इजी यूनिट है. तो 1 by 1 पहले अल्कोहल ले लेंगे, इसके बाद फिनॉल ले लेंगे, इसके बाद ईथर ले लेंगे. यूनिट खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. ट्राई टू शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, ताकि हर एक को बेनिफिट मिले अपने वीडियो को. ओके, थैंक्स.